Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Harihi Om. That which we call the outer world is perfect. This which we call the inner world is perfect. Each one filled with divine consciousness. Perfect comes from perfect. Take perfect from perfect. The remainder is perfect. Divine consciousness is non-dual. Anything that emerges from the divine consciousness is whole, is complete, is Purna. May peace and peace and peace be everywhere. Om Shanti, Shanti, Shanti. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva. Welcome all to the Purnamada series, episode 2, season 3. I am Irmila and I have been in this journey of past life regression with Dr. Jain for the past few years now. Dr. Jain is a well-known public persona in the field of past life regression therapy. She has been awarded for her research in past life regression. She has conducted 2 seasons of Raas Pichle Janam Ka on NDTV and has also been invited for the prestigious TED Talk. I welcome Dr. Jain to this episode of the Purnamada. Thank you, Urmila. Friends, here I would like to say that the Purnamada series is a platform for all to come and share their life experiences about past life regression therapy and how it has helped them heal themselves. This is only a motivation to help others heal themselves as well. In conversation with Dr. Jain and me, we have Dr. Harjinder Kaur from Amritsar. I would like to introduce Dr. Harjinder Kaur to all of you. Dr. Harjinder Kaur is a PhD in positive psychology, a past life regression therapist, an NLP basic practitioner. She is currently working as a counselor at a government hospital. She's a family counselor as well and has been working as a counselor since 2004. She has worked as a counselor with HIV and AIDS infected patients. She's a counselor in the Women's Helpline. She provides training to the Navodaya Vidyalaya Training Institute as a teacher trainer. She also has her own clinic under the name of Healthy Man. And friends, she's also a mother to 2 beautiful daughters, a wife of a businessman, and she lives with her in-laws in Amritsar, Punjab. Welcome, Dr. Harjinder Kaur. Thank you. Namaskar, ma'am. Namaskar, Harjinder. Namaskar. Wonderful, Irmila. That was a lovely introduction. Yes, ma. And Dr. Harjinder here would be speaking about her relationship
And she would also be speaking about something very different today, her obsession for eye makeup. Yes. Now, I am more interested in the other half. I'm So, sure. yes. I'm sure a lot of people are going to be interested in what she has to say. So welcome, my dear Harjinder and Thank you, Nirmala. ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. So you know, Harjinder, being a psychologist and from the field of, let's say, kind of cognitive psychology, like Nirmala just shared with us, it's very difficult for people like that to get into something which is, let's say, an esoteric or spiritual. Yes. So what is it, Harjinder, that got you interested in something which is spiritually inclined, like past life therapy? यस मैम, एक्चुअली जब मैं काउंसलिंग घर पे प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने देखा कि कितने कितने सेशंस लेने पड़ते हैं, 10 सेशन, 13 सेशन, 15 सेशन। उसमें जो हीलिंग मॉडलिटी है वो काफ़ी देर से आता है, बहुत सारे लोगों की होती है और कई बार क्लाइंट्स का ड्रॉप आउट भी हो जाता है। और स्पेशली जो मैं फेस कर रही थी वो था टर्मिनेशन, कि सेशन का टर्मिनेशन कैसे करना है। एक्चुअली क्लाइंट आता है सिम्टम्स के साथ, वो उनके कोर पे मतलब वो उनके सरफेस पे होते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम होता है उनके कोर में। तो गोल तो सेट हम कर लेते हैं कि ये चीज़ हमने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से हटानी है या इससे हटानी है, लेकिन जब हम हीलिंग शुरू कर देते हैं तो सरफेस पे और निकलना शुरू हो जाता है। Correct. तो वो बहुत लॉन्ग टाइम लेता है और कई बारी क्लाइंट्स खुद ही मतलब ज्वाइन नहीं करता सेशंस। तो मुझे लगा कि ये कंप्लीट नहीं है, अगर मैंने ये इस फील्ड में हीलिंग करनी है तो मुझे कुछ और करना होगा। तो ऐसे ही मैंने नेट पे सर्च किया था कि इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसे ही मैंने डाला था कि व्हाट अदर मॉडलिटीज आई कैन डू। तो कंप्यूटर गूगल बाबा ने दिखाया कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और पास्ट लाइफ रिग्रेशन और कई कुछ और भी आया था। तो फर्स्ट टाइम मुझे स्टिक किया था कि मैं एनएलपी करूं, क्योंकि उसकी मैंने इंट्रोडक्शन देखी यूट्यूब पे, जैसे टीचर्स करवा रहे हैं ना, तो मुझे लगा कि मुझे वो भी करना चाहिए। तो पहले मैंने बेसिक्स उसका किया। तो बेसिक करते 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 फिर मैंने सोचा कि मैं और क्या करूं जिससे मतलब इमीडिएटली रिजल्ट आए और क्लाइंट बोले कि हाँ एक्चुअली उसका बिहेवियर मॉडिफाई हो रहा है। तो ऐसे ही मैं और रितु जो लुधियाना से हैं, आपकी स्टूडेंट, तो एक ग्रुप में हम कॉमन हैं। तो उन्होंने आपका लुधियाना वाला वर्कशॉप ग्रुप में डाला हुआ था। तो आई सॉ कि ठीक है, मैंने रितु को फ़ोन किया कि मुझे ये थेरेपी सीखनी है। तो मुझे ये नहीं पता था कि पहले खुद भी करना होगा। एक्चुअली मेरी लाइफ नॉर्मल रही है, ऐसे कोई ट्रॉमा या कुछ ऐसा नहीं था कि जहाँ कोई हेल्थ इशू या कुछ कि मुझे कुछ हील करना है। तो मैंने रितु को बोला, रितु ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं जिसके लिए आऊँ, तो मुझे तो एज ए थेरेपी ही सीखना है। तो उन्होंने कहा, माय डियर, अगर आप क्लाइंट्स की कर रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए कि जिस प्रोसेस से आप क्लाइंट को लेके जा रहे हो आप उसको एक्सपीरियंस तो करो, फिर ही आपको पता चलेगा, है ना। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने आपका वो 2 डेज का लुधियाना वाला वर्कशॉप किया एंड इट वाज अमेजिंग। मैंने आपसे शेयर भी किया था उस टाइम जब आप अपने वो दिए हुए थे टॉपिक्स के, हेल्थ रिग्रेशन, एज रिग्रेशन, रिलेशनशिप। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था, मुझे याद है कि मैम मेरी ऐसे आँख में प्रॉब्लम है ना। तो वहीं से ही फिर मेरा जर्नी शुरू हुआ और उस 2 डेज की वर्कशॉप के बाद फिर मेरा थेरेपी सीखने का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो उसी ईयर ही मैंने 2018 में ऋषिकेश मसूरी में आपके साथ ट्रेनिंग लिया। Absolutely, Harjinder. So I think everybody is interested to know कि भाई तुम्हारी जो आंखों की जो मेकअप का जो ऑब्सेशन था वो कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और किस तरह के साइंस और सिम्टम्स की वजह से तुम्हें लगा कि ऑब्सेशन सा है, और फिर कैसे तुम्हें उसका आंसर मिला और वो पास्ट लाइफ क्या थी जिसमें कि तुम्हें वो आंसर मिला। आई थिंक इट वुड बी सो इंटरेस्टिंग। हरजिंदर बताइए जरा। एक्चुअली शुरू में तो मैं सोचती थी कि मेरी हैबिट है जी। सभी मुझे कहते थे कि आई मेकअप बहुत करती है, घर पे भी सभी को पता था कि हाँ इसकी हैबिट, क्योंकि हम हैबिट का ही नाम दे देते हैं, कोई पैटर्न जो हम झेल रहे हैं तो हम हैबिट का नाम दे के उसको डिफेंस लगा देते हैं कि इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तो जब मैंने रिग्रेस किया आपने मुझे, तो मैंने देखा कि हाँ, पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये हुआ कैसे, आया कहाँ से। तो मैं 10+2 में थी जब से मुझे आई मेकअप की ऑब्सेशन हुई। डार्क कजल लगाना, मस्कारा, आईलाइनर, वो मेरे पास में हमेशा होते थे। तो मतलब मुझे लगाना ही होता था। तो ग्रेजुएशन, मास्टर्स में भी, है ना, मास्टर्स में जाके तो मेरे साथ ऐसा हो गया था कि वो लगाना ही लगाना है, मुझे कहीं भी लगाना है
तो सबसे पहले ये मतलब मेरा मेकअप होना चाहिए, तो फिर मैं जाऊंगी। और मेरा एक बिलीफ भी था उसके पीछे कि अगर आप ऐसे डार्क मेकअप कर रहे हो तो अगर कोई इमोशन आपको आएगा रोने वाला तो आप रोगे नहीं। तब तो मुझे पता था इसका इशू। वेरी इंटरेस्टिंग हरजिंदर कि Yeah. इमोशन सप्रेस कर लेंगे आप। सप्रेस कर लेंगे। तो हाँ। कभी कभी ऐसे होता था ना, जैसे मैं गांव से हूँ, मैंने नया नया यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, मतलब हॉस्टल सिटी बिग Yeah. सिटी, मेरे लिए सब कुछ बड़ा ऑकवर्ड था। तब मैं पर्स डालना भी मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था कि पर्स डाल के बाहर निकलना है, मतलब इतना मैं शाई थी और क्लास में बहुत कम बोलती थी। अब मेरे क्लासमेट्स भी कहते हैं कि ये वही हरजिंदर है, मतलब मैंने चेंज कर लिया। तो कितना चेंज उससे हो फिर गया। क्या हुआ, जब मैंने पास्ट लाइफ में देखा कि मैं एक डियर हूँ, हिरन हूँ, और वो जो उसका पार्टनर है उसकी डेथ हो चुकी है और उसके पास बैठ के वो रो रही है। तो लिटरली उस सेशन में भी बहुत सारा रोई थी मैं, मुझे याद है। तो मतलब वो लाइफ टाइम मैंने उस मेरे पार्टनर के चले जाने के बाद अकेले ही झेला, जंगलों में अकेली घूम रही हूँ, रो रही हूँ, मतलब रो रो के मतलब वो आईज में मेरे स्टक हो गया। तो 2009 में इस करंट लाइफ टाइम में राइट हैंड आईज को मेरी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, टीबी। ओके। स्टक इमोशन की वजह से मैंने मेडिसिन भी खाया, कई कुछ किया, लेकिन वो विजन नहीं इम्प्रूव हो रहा था। वो तो चला गया था, इशू तो चला गया था मेडिसिन से, मतलब विजन में। और फिर डॉक्टर ने कहा कि उसके ऊपर स्कार है, वो स्कार नहीं जाएगा। लेकिन जब मैंने ये रिग्रेशन किया आपके साथ लुधियाना में, तब भी मैंने बताया था आपको कि मेरा वो इमोशन भी चला गया, पेन भी चला गया और विजन भी इम्प्रूव हो गया है। और मैं अब ज्यादा ऑब्सेशन भी नहीं हूँ मेकअप करने के लिए। माय गॉड, क्या कह रही हो तुम? हाँ, यस मैम, विजन भी इम्प्रूव इम्प्रूव हुआ हो है, गया। इम्प्रूव हुआ है, मतलब 6/6 नहीं है, हाँ। काफी इम्प्रूव हो गया है। पहले मुझे राइट हैंड आई से जूम करके चीजें दिखती थी, हल्की सी जूम, हाँ। लेफ्ट से तो ठीक है, राइट से था। तो अब वो चीज चली गई है, थोड़ी क्लैरिटी हो गई है विजन में भी, और पेन भी नहीं है, और मुझे मेकअप का भी वो मेरा हाँ, मैं टाइम। देख सकती हूँ आज तेरी आंखें एकदम सुंदर दिख रही है प्लीज है। विदाउट मेकअप। Oh यस my मैम। God. तो फिर तब इस मुझे लगा ये कि सही। जो ट्रेडिशनल साइकोलॉजी है, जो हमें मतलब हमारे पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए बोलती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से, ज्यादा थेरेपी से, तो ये तो मिनटों में हो गया। मुझे तो ऐसा लगा कि वाओ, ये तो मैजिक है। हाँ, मैजिक ही मुझे लग रहा है, बिकॉज ये जो तू बता रही है कि आई मेकअप करना, इट्स लाइक अ पैटर्न, लाइक अ हैबिट। यस मैम। पर तुमने इस चीज को इतना ब्यूटीफुली क्या कहते हैं, एनालाइज किया हरजिंदर, कि हो सकते कोई इमोशंस है जो मैं सप्रेस करना चाहती हूँ, यस इसलिए वो मैम, आई मेकअप करना चाहती हूँ। तुम्हें जो आंसर मिला वो भी इंटरेस्टिंग था। बहुत था एज मैम। अ लाइफ टाइम ऑफ अ डियर, ओके, एनिमल लाइफ टाइम, हिरन की यस लाइफ मैम, टाइम, यस मैम। एंड हाउ द एनिमल ने अपने इमोशंस को मतलब शी केप्ट क्राइंग क्राइंग क्राइंग, और इससे तुम्हारी विजन भी इम्प्रूव हो गई, यस तुम्हारा मैम, मेकअप का ऑब्सेशन भी चला गया। आई यस थिंक मैम, ये डेफिनेटली। तो मैजिकल है और मैम मैं जिंदर। लर्निंग भी बताना चाहूंगी इस लाइफ हाँ। टाइम से, जो मैंने लर्न किया, जो अब आपने हमारे पूर्वजों के पास आप लेके जाते हो कि आप को क्या हीलिंग और लर्निंग क्या है फर्दर। तो लर्निंग उसमें मैंने यही सीखा कि इस लाइफ टाइम, जो मेरा वो लाइफ टाइम था, जैसे हिरन बहुत एक्टिव होते हैं, हाँ, और मैंने फिर उस चीज से अपने आप को कोरिलेट करना शुरू कर दिया कि जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उससे आ रहा है, तो मैंने उसी चीज को फॉलो करना है, उसी चीज को पॉजिटिविटी को लेके चलना है कि उस लाइफ टाइम से भी मेरी जो प्रेजेंट कॉन्शियसनेस है वो कनेक्टेड है। तो वहां से जो एक्सपीरियंस आ रहे हैं, मैंने सोचा कि वो तो मैंने हील कर लिया, लेकिन जो पॉजिटिव है उसको मैं अपनी स्ट्रेंथ मान के चलूंगी। ब्यूटीफुल हरजिंदर, बहुत बढ़िया तुम Yeah. बता रही हो। और ये And ना, ma'am, मतलब हाँ, uh, या इर्मिला बोलो। even the deer is known for beautiful eyes. यस यस, मैम। So yeah, एब्सोल्युटली। so it is so हाउ इट interconnected. इज Yeah, कनेक्टेड, यस, एंड और मैम मैं ऑल्सो चलती भी बहुत तेज हूँ, डियर की तरह। नहीं, पर ये जो तुमने बताया हरजिंदर, ये सबको मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम कोई लाइफ टाइम देखते हैं, स्पेशली पशु का जीवन जब देखते हैं, तो पशु के जीवन की जो क्वालिटीज होती है, जैसे हरजिंदर ने कहा कि तेज चलना, डियर में और भी कई तरह की होगी क्वालिटीज, लाइक तो वो सब क्वालिटीज हरजिंदर ने अपने भीतर ले,
कि डिसिप्लिन है, फास्टनेस है, स्टेडी Yes, फास्ट ma'am. है, स्मूथनेस है, ये जो क्वालिटीज है ये तुमने कॉन्शियसली सोचा Yes, कि ma'am. ये क्वालिटीज भी मुझे अपने भीतर है मेरे पास, इसे Yes, मुझे ma'am. उभारनी है। उभारनी है, यस मैम। तो वंडरफुल। मैंने सर्च किया डियर के ऊपर। तो हाँ उसमें मैंने एक चीज और फाइंड आउट की, जैसे मैं थी कि मुझे और पढ़ना है, ये करना है, तो मैंने डियर से फिर मैं आपको कंपैरिजन किया कि उसके हाँ पास ही सब कुछ होता है, जो है वही रिसोर्सेज मैंने यूज करने हैं एज कम्पेयर टू कि मैं इधर उधर भागती ही रहूं बहुत और बढ़िया। के चक्कर में। True, yeah, सो true. ये Very हरजिंदर nice. अनदर वेरी इंटरेस्टिंग लर्निंग कि जो क्वालिटीज आपके पूर्व जीवन से आप लेकर आए वो आपके भीतर ही है, यस उसको मैम, हमें सिर्फ बाहर निकालना है। वंस यू अंडरस्टैंड दैट, वो क्वालिटीज अपने आप बाहर निकाल सकते बहुत हैं। चेंज आ वेरी गया मैम, नाइस। तब से तो बहुत चेंज आ गया है। वाओ, बट चेंज तो हमें दिख ही रहा है तेरी आंखों में। लवली हरजिंदर। यस। Harjinder, when did you feel that what you were doing, you needed to, in the workshop you said, आपने बोला कि it was not important, आपको आपके अंदर कोई खामियां नहीं लग रही थी या हाँ जी issues मैम, नहीं लग रहे थे, जी जी तो जी। आपको ऐसे लगा कब कि हाँ मेरे आईज का इशू है, एंड जब माँ बोल रहे थे वहां पर मे बी हेल्थ इश्यूज या जैसे कराते हैं, तो when did you feel कि ये एक इशू हो सकता है आपका? एक्चुअली मैंने मैम कुछ ज्यादा नहीं सोचा था। जब मैम ने मतलब ट्रांस में हमें लेके गए, मैम इंडक्ट कर रहे थे, इंडक्शन बोल रहे थे वो स्क्रिप्ट, तो मैम ने कहा जो भी आ रहा है उसको आने दो। मैंने जैसे मैम से पहले ही डिस्कस किया था कि मैम भी हेल्थ के बारे में आप क्या करवाने वाले हो, जैसे मैम टी ब्रेक्स में या लंच ब्रेक्स में बात करते हैं ना, तो मैम ने कहा देखो क्या अनफोल्ड हो रहा है, आओ आने दो उस चीज को। तो मैं तो फ्री थी उस चीज के लिए कि जो भी आ रहा है वो ठीक है, मैं उसको फेस करने वाली हूँ, और जो भी होगा। तो फिर मैंने कुछ एनएलपी की मॉडलिटी भी साथ में लगाती हूँ मैं जब मैं खुद की हीलिंग करती हूँ। तो उसी वे तो जब बाहर आए सेशन से, फिर मैंने पास्ट के साथ डॉट्स को कनेक्ट किया, तो फिर ये विजन अवेयरनेस तो मुझे मतलब बाद में आई। 2 डेज की वर्कशॉप के बाद 1 वीक मैंने इसी चीजों के ऊपर सर्च किया, अपना इंट्रोस्पेक्शन किया कि वहाँ क्या मतलब अंदर से निकला है, अब एक्सपीरियंस उसको किया था। क्या, जी मैम, Yeah. उनको आगे ही कैसे करना है। तो फिर मैंने वो बाद में फॉलो किया उस चीज को। वेरी नाइस ये हरजिंदर, बहुत ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यस माँ, क्योंकि देर आई डोंट नो वेदर इज द सेम लाइन, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम एंड से हमको तो कोई इशू नहीं है, व्हाट इज द रीजन वी नीड टू गो, Yes, एंड देन yes. इट इज सो ब्यूटिफुली शी इज जस्ट शी वेंट टू लर्न समथिंग एंड समथिंग एल्स केम अप। यस मैम, So it is important, the viewers to understand कि हमारे पास हमेशा issues रहना जरूरी नहीं है. We Yes. can just go, to experience something there, and something might just come up. एब्सोल्युटली। Very, और very क्या nice. है, और क्या है मतलब कुछ ना कुछ तो इश्यू होगा, पर हमने शायद उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। ध्यान Yes, नहीं. ma'am. यू नो, एंड लाइक शी राइटली सेड ना, हरजिंदर ने जो कहा कि इट स्टार्टेड टू गेट अनफोल्ड होने लगा वो चीजें, Yes, और फिर ma'am. अपने आप धीरे 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 वो उसको इंसाइट्स मिलने लगी। यस सो हरजिंदर, उसके बाद देन यू केम फॉर द ट्रेनिंग। यस मैम, उसके बाद फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर मेरा इशू एक हफ्ते में इतनी चेंजेस मुझे मिल सकती हैं, तो थेरेपी में क्लाइंट्स के लिए तो डेफिनेटली काम करेगा। और पर्सनली मुझे ये भी लगता है कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, जिस भी फील्ड में हम हैं, मतलब उस फील्ड में आपकी खुद की हीलिंग मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे वो होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट आते हैं हमारे पास प्रॉब्लम्स के साथ। तो अगर हम सही है। खुद की हीलिंग नहीं करेंगे तो हमारे खुद के इमोशन ट्रिगर हो जाते हैं, तो True. उसको मतलब लेके कैसे जाना है जर्नी पे, या उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकालना है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि खुद की हीलिंग, खुद को अंडरस्टैंडिंग, अपने प्रोफेशन की जो बेस्ट हम अपना दे सकते हैं वो होनी चाहिए। बिल्कुल इसीलिए हरजिंदर। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसको एज ए थेरेपी सीखूंगी, तो फिर मैं उसी ईयर ही आपके साथ या यू मसूरी में थी। केम टू मसूरी, करेक्ट यस मैम। हरजिंदर। तो इसके अलावा कोई और तेरे खुद की पास्ट लाइफ जो तुम शेयर करना चाहोगी? यस मैम, उसके बाद जब मसूरी में आपने किया था रिलेशनशिप के ऊपर, ग्रुप में ही हमने किया था आपने, तो मैंने विटनेस किया, मैंने देखा कि चलो मदर इन लॉ के साथ देखते हैं। तो मैं पहले का बता दूं, जब मैंने थेरेपी नहीं की थी वो कैसे मेरे उनके साथ रिलेशनशिप थे, क्या पैटर्न थे हमारे। अदरवाइज तो सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लड़ाई झगड़ा था या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था।
लेकिन एक चीज थी कि हम कंफर्टेबल नहीं दोनों एक दूसरे के साथ थे। हम्म, तो जब भी हमने बैठना जहाँ कुछ करना तो हमेशा हमारी बहस हो जाती है बातों के करेक्ट। ऊपर, है ना। हाँ। तो कभी कभी वो टॉन्ट भी कर जाते थे। तो पहले तो मैं सोचती थी चलो ठीक है, सभी आसपास सुनते हैं कि हाँ मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ ऐसे रिलेशनशिप है, जैसे हमारी वो प्रॉब्लम्स होती है, हिप्नोटिक सोशल एक कंडीशनिंग भी हो चुकी है ना कंडीशनिंग इन होती चीजों है। से कि करेक्ट। ये रिश्ता ऐसे ही है ना, जो ऐसे ही बहनों से सुना, फ्रेंड है। से सुना। तो इतना मैंने वो लिया नहीं था इस चीज को, मैंने कहा चलो ठीक है जैसे चल रहा है ना। तो बट जब मैंने वो विटनेस किया लाइफ टाइम, तो मैंने देखा कि वो मेरे मदर थे उस लाइफ टाइम में, राजस्थान में कहीं थे, और मेरे हस्बैंड जो करंट लाइफ टाइम में वो मेरे फादर हैं। वो कपल थे और मैं उनकी सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ, ऐसा मैंने विटनेस किया। तो इस लाइफ टाइम में जैसे हमने कहीं जाना है तो मैंने कई बार नोटिस किया था कि मम्मी जैसे मैं तैयार हो रही हूँ वैसे ही मैचिंग मैचिंग तैयार होते थे। तो कभी कभी मुझे थोड़ा इरिटेट भी लगता था कि ऐसे मतलब मिक्स मैच सा होके जा रहे हैं ना, तो थोड़ा हाँ, गैप भी होना अजीब चाहिए। लगता है। अजीब हाँ। सा लगता था मुझे। हाँ। तो जब मतलब उन्होंने जब ऐसे मैं बॉबी के साथ कहीं जाना तो उनको भी होता था कि हाँ मुझे भी वो ऐसे लेके जाए। तब मैंने विटनेस किया तो फिर मैंने ये फाइंड आउट किया कि ये ऐसे बिहेवियर जो आ रहा है इसका पैटर्न है। क्योंकि कभी वो कपल रह चुके हैं और मैं उनकी बेटी हूँ, बट वो मुझे छोटी मानते हैं, मतलब वो दोनों अपने आप को जैसे बड़े हैं मेरे से, है ना, वैसे मुझे डील करते हैं और कुछ नहीं है ऐसा जैसे मैं सोचती थी उल्टा पुल्टा वैसा कुछ नहीं था। तो फिर मैंने उस लाइफ टाइम में ये भी विजिट किया कि कोई दूर कुआं है, हम दोनों पानी भरने जा रहे हैं मटकों में, तो मुझे बहुत प्यार कर रही है, मतलब जैसे एक डॉटर और मदर का रिलेशनशिप होता है। तो उसी सेशन में मुझे बहुत रोना आ रहा था, पता नहीं क्यों कहाँ से था, कि इतना प्यार है हमारा आपस में, मतलब ऐसी कौन सी लेयर है हमारे माइंड के ऊपर जिसकी वजह से इस लाइफ टाइम में हम अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं ना। तो फिर मैंने विटनेस किया कि उस लाइफ टाइम में मैं यंग एज में ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती हूँ उनको छोड़कर। तो हम बॉम्बे मतलब चली जाती हूँ मैं। तो फिर मैंने उसके बाद देखा कि जो मेरे फादर हैं उस लाइफ टाइम में वो भी जल्दी चले जाते हैं, और जो मेरी मदर है वो अकेली अपना जीवन व्यतीत करती है, और उनकी ओल्ड एज में उनको कोई बीमारी भी हो जाती है, मतलब वो मंजे पे पड़ी हुई थी और मुझे कोस रही थी। लिटरली मैंने वो सीन देखा कि काश वो मुझे मिल जाए तो मैं बता दूं उसको, मतलब उसने मेरे साथ क्या किया है। हाँ। इस सीन से पहले मैंने एक और सीन भी विटनेस किया था कि उस गांव में कोई पंचायत टाइप कुछ लगा हुआ था जिसमें मेरी मदर को बहुत सहना पड़ा मेरे बारे में कि तुम्हारी बेटी ऐसे चली गई है। तो तब भी मैंने देखा था लिटरली उनके फेस के ऊपर और उनका बॉडी लैंग्वेज, वो कितनी खफा है मेरे से। तो अपने एंड डेज में जब उनकी डेथ हो रही थी तब भी वो मुझे ही कोस रही थी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं देखा। तो इस लाइफ टाइम में भी जब भी मैं कहीं जाती थी तो मम्मी पीछे से बीमार पड़ जाते थे। ओके। तो जैसे इवन के मैं अपने पेरेंट्स के घर लुधियाना से मैं बिलोंग करती हूँ, तो जाती थी तब भी मतलब पीछे फोन आ जाता था कि वो बीमार हो गए हैं, उनका बीपी बढ़ गया। जब मैंने वापस आना तो उन्होंने हमेशा ये बात बोली, तेरी वजह से होता है ऐसे, मतलब टिपिकल पंजाबी है तो तू ही ਏਦਾਂ करदी है, मतलब टिपिकल पंजाबी में ऐसे बोल। मैंने कहा मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, मतलब उनको कॉन्शियसली उनको भी नहीं पता कि वो पैटर्न करेक्ट। कहाँ से आ रहा है, वो ऐसा बिहेवियर मेरे साथ क्यों कर रही हैं। और मुझे भी ऐसा अच्छा नहीं लगता था कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है कुछ, ये मुझे क्यों करती है ना। तो गुस्सा भी आता था, इमोशंस भी मतलब अच्छे नहीं आते थे कि क्या है ये सब। तो फिर मैंने जब वो हीलिंग ली और आप ही की स्क्रिप्ट है जो पैरेलल रियलिटी में फॉरगिवनेस किया, तो मैम वो मैंने 21 डेज की अपने मदर इन लॉ के लिए। उनको नहीं कुछ भी पता इसके बारे में कि मैं ऐसा कर रही हूँ। तो 21 डेज के बाद फिर मैंने ऐसे ही फॉरगिव अपने मन में ही फॉरगिव करना शुरू कर दिया। लेकिन ये फॉरगिवनेस जब मैंने शुरू की, ये मेरे बहुत इजी नहीं था मेरे लिए। बहुत रिजेंटमेंट थी मेरे में, स्टबन कि मैं ऐसा कैसे करूं। जब भी मैं करने की कोशिश करती थी तो वो इवेंट्स जो इस लाइफ टाइम में हुए, जो एक्सपीरियंस थे उनके साथ, वो आपके साथ सामने आ होते हैं। जाते थे। तो आप मानो कि मैं हफ्ता 10 दिन मतलब इसी में ही मेरे निकल गए कि मैंने फॉरगिव करना है। इतनी ज्यादा रिजेंटमेंट थी कि मैं कर ही नहीं पा रही थी। विटनेस भी कर लिया, हीलिंग तो तभी होगी वहां पे, अवेयरनेस करेक्ट। भी आ गया। अब मैं हाँ। कॉन्शियसली करना चाहती हूँ कि मैं इसको हील कर लूं।
जैसे हम सुनते हैं कि फॉरगिवनेस करते हैं तो हीलिंग होती है और ही ज्यादा, है ना, वो एक्चुअली वर्क नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, तो फिर मैंने बैठी, थोड़ा अपने आप को शांत किया, तो फिर मैंने सोचा इसके बारे में। तो फिर ऐसे ही मैं ओशो जी की कोई ऑडियो सुन रही थी, तो उसी में वो बता रहे थे कि ये जो फॉरगिवनेस आपने करनी है, पहले तो ये आपके लिए है, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे स्ट्राइक करी वो थी कि जो दूसरा आपके लिए रोल प्ले कर रहा है, वो आपके लिए, मतलब वो रोल प्ले कर रहा है, वो आपके अच्छे के लिए कर रहा है। अगर कोई हर्ट नहीं करेगा तो फॉरगिव कैसे करोगे? अगर आपको प्यार ही प्यार मिल रहा है तो फॉरगिवनेस करना तो आप कभी सीखोगे ही नहीं। तो वहां से लिटरली मतलब मेरे में चेंजेस आ गई, मेरी परसेप्शन टोटली शिफ्ट होगी कि ओके, वो तो मेरी मदर है। फिर मैंने वो सीन याद किया कि जब हम मटकी लेके पानी जा रहे थे, कितना तो प्यार वो कर रही थी। हाँ, वो कितना प्यार कर रही थी कि जो सिर्फ इस उसकी वजह से जो मैंने किया। फिर मैंने अपने आप को देखा कि नहीं, मेरी ये गलती थी। फिर मैंने अपने ही माइंड में ये चीज एक्सेप्ट की कि हाँ, मुझे ये चीज करनी है। तो फिर ऐसे ही मैंने और करना शुरू कर दिया। तो आप 2-3 महीने के बाद इस चीज के, तो एक दिन उन्होंने खुद ही मुझे बोला क्या? कि हमें ना दोनों को थोड़ा थोड़ा ठीक करना चाहिए अपने आप को, हरजिंदर। हमें तो साथ ही रहना है। तो मुझे तो मतलब ऐसे हुआ कि वाओ, रियली ये मॉडलिटी रियली वर्क कर रही है। जो वर्क कर रही है। इतने अथॉरिटेरियन, इतने वो थे, वो खुद मुझे बोल रहे हैं। पहले तो मुझे बहुत मतलब शॉकिंग सा लगा कि वाकया ही ऐसा होता है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, सर अब मेरे अपने आप ही माइंड में जो क्वेश्चन आ गया, तो आप मेरे से क्या चाहते हो? उनसे मैंने पूछा वेरी गुड। कि आप मेरे से क्या चाहते हो, है ना। तो उन्होंने कहा, तू मेरे पैर नहीं ना छूती हो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा। तो वहीं से मेरे माइंड में आया कि वाकई ही ये मेरे वेल विशर हैं, वाकई उस लाइफ टाइम में ये मेरे गाइड हैं, मेरे हेल्पर हैं। इस टाइम में सिर्फ रोल विलन का प्ले कर रहे हैं, वो भी सिर्फ मेरे लिए। वेरी तो नाइस। फिर मैंने वहां से ये अंडरस्टैंडिंग ली, ये लर्निंग ली, ये पैर छूने का इसलिए बोल रही है कि ये फॉरगिव करेंगी अनकॉन्शियसली मुझे। आशीर्वाद देगी तुझे। हाँ। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है मम्मी। तो मैंने फिर मैम एक रिचुअल बनाया कि मैं रात को सोने से पहले उनके पैर छूंगी और उनको हग करूंगी। तो फिर मैंने वो चीज शुरू की, और जब भी मैं उनके पैर छूती थी तो मैं मन ही मन, जब हार्ट से हार्ट हमारा टच होता था, तो मैं ये बोल देती थी कि प्लीज मॉम, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, ऐसे अच्छी अच्छी वर्डिंग्स। तो धीरे 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 बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हो गई है। उनका भी वो बिहेवियर बहुत हद तक चला गया है। और जब कभी ऐसा इवेंट होता भी है तो वो अवेयरनेस, वो अंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझे अफेक्ट नहीं कर रहा। क्या बात है हरजिंदर, कितनी सुंदर बात तुमने आज बताई है। मतलब मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं रियली। हरजिंदर, इतनी ब्यूटीफुल बात तुमने बताई कि कैसे तुमने अपने आप अपने ऊपर काम किया। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी सीख है लोगों के लिए कि हम हमेशा चाहते कि दूसरे लोग चेंज हो। हम ब्लेम और शेम करते दूसरे लोगों को, पर यहाँ मैं देख रही हूँ कि तुमने आफ्टर द सेशन गॉट ओवर, तुम घर गई, तुमने अपने आप अपने ऊपर काम करना शुरू किया। फिर तुमने ये सोचा कि नहीं, जो भी मम्मी कर रही है वो शायद मेरी भलाई के लिए कर रही है, बिकॉज मैंने एक्चुअली गलती की थी। और फिर धीरे धीरे फिर हाउ शी हैज चेंज्ड, इमेजिन। Yes, ma'am. But She it has started not changing. been, it has not been a very, smooth path for Harjinder also. Yes, ma'am. Yes. बहुत मुश्किल था मेरे लिए। बहुत difficult है बहुत किसी को forgive करना, बहुत difficult है। मैम, जब भी मैं सोचती थी मैं फॉरगिवनेस करूं, उनको जाके पर्सनली बात करूं, जा उनके तो मुझे माइल्ड एंजाइटी हो जाती थी, माइल्ड ऐसे एंग्शियस सी। तो करने जाती थी, लेकिन फिर वापस आ जाती थी, मैं कर नहीं पाती थी। तो फिर एक दिन Maybe ma, this is an ego state of us also that plays a role. Absolutely. एक्चुअली Sometimes वो भी मैंने फिर इंट्रोस्पेक्शन किया। वो एक्चुअली आ रहा था कि मैं जैसे साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक रेपो है, वैसे उस वजह से। तो फिर मैंने ये अंडरस्टैंडिंग की कि नहीं, ये जो लाइफ टाइम है, ये मेरा रिलेशनशिप हीलिंग के लिए भी ये मेरा एक लेसन है। तो वो रोल्स मैंने फिर अपने आप से डिसएसोसिएट किए कि उस चीज का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अलग चीज है और वो अलग है। तो फिर मैंने ड्रॉप आउट किया उन चीजों को, डॉक्टर को और जो रेपो है उन चीजों को। फिर मैं वापस उनकी बेटी बनने की कोशिश की। वेरी Wow. गुड। So this is what we call
what we call kind of spiritual ego. Yes, ma'am. No, we all have a spiritual ego. You see, like she's a psychologist. She helps others. माने मैं यहाँ हूँ और मम्मी को तो कुछ समझ भी नहीं आता है, पर एक्चुअली उल्टा है, उल्टा है मुझे मैम, कुछ समझ में नहीं आ रहा. एग्जैक्टली उल्टा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. And when you समझ में नहीं आ रहा. understood this, No. Harjinder, जब तुम्हें ये समझ में आया ना, तो everything Change changed. आया. That's beautiful, Harjinder. Yeah. और मुझे लगता है हरजिंदर, आफ्टर दिस अवेयरनेस जो तेरे अंदर आ गई है विद 2 ब्यूटीफुल सेशंस, और तुमने जो अपने ऊपर काम किया उसके बाद, यू मस्ट हैव बिकम अ वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट, आई एम श्योर. थैंक यू मैम. यस मैम, Now जैसे आते she works for the women's helpline. I was reading. You Yeah. imagine there must be itne sare people who, ladies especially, they have conflicts with their mother-in-laws and stuff like Absolutely. that. यस मैम, You can, So- you must have used this, na? Therapy Yeah. use karte ho? एग्जैक्टली. हाँ, of course, Yes, I'm ma'am. sure use करती होगी हरजिंदर. Now she's going to share some great insights, because जहाँ से तू start हुई थी, kind of cognitive psychology Yes, के ma'am. साथ में, and Yes, now ma'am. you seem to have moved obviously to becoming a therapist, a past life therapist, spiritually जो तूने सीखा हुआ है तो अपने काम के साथ इंटीग्रेट कर रही है. यस मैम. अब तू अपने काम को कैसे देख रही है? अब मैं इस काम को दोनों तरीके से अभी भी देख रही हूँ. हाँ. एक तो ये है कि जैसे मेरी खुद की हीलिंग हो रही है. दूसरा, जो क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, उनके कुछ देर के बाद ही फोन आ जाते हैं कि जिस चीज के लिए वो आए थे वो उनका रिजॉल्व हो गया है. तो क्या उससे मुझे बात और है. खुशी मिलती है. Lovely. Very nice. So कुछ केसेस तेरे कुछ इंटरेस्टिंग होंगे, क्लाइंट के यस मैम, केसेस, मैं प्लीज यस शेयर. मैम. हाँ, प्लीज शेयर कर. और सर, मैं एक चीज और आपको बता दूं कि ऐसा ही मेरा क्लाइंट था जो पहली बार मेरे पास आया. हाँ. उसका भी अपनी मदर इन लॉ के साथ ही इशू था. मैंने सोचा कि अब क्या अनफोल्ड हो रहा है. मैं चलो देखते हैं क्या अनफोल्ड. तो जब मैंने वो मेरे पास आई जब, तो उन्होंने बताया कि जब वो सुबह उठती हैं तो उनके बॉडी होता है और उनको माइल्ड एंजाइटी सुबह में होती है जब वो उठती हैं. और दूसरा, मदर इन लॉ की वजह से मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ. ऐसे ऐसे उनका था रिलेशनशिप, ये घर के सब कुछ उन्होंने मुझे बताया. तो मैंने कहा चलो देखते हैं. तो मैंने उनको रिग्रेस किया. जब पैरेलल रियलिटी में हम लेके जाते हैं ना कि अब आप एक कमरे में हो जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, तो उन्होंने देखा कि जो उनकी मदर इन लॉ है वो एक लिटिल गर्ल चाइल्ड है, और वो तभी आ गए थे. पास्ट लाइफ में वो रिग्रेशन कंडक्शन मैंने कुछ भी नहीं किया. हाँ. जब हम पैरेलल रियलिटी में उनको बोलते हैं ना कि आके कंफर्टेबल रूम में हो, तो आप जिस पर्सन के साथ आप पैरेलल रियलिटीज में जाना चाहते हो, आप उनको इमेजिन कीजिए, कॉल कीजिए. जब उन्होंने कॉल किया तभी उनके मदर इन लॉ एज अ लिटिल गर्ल चाइल्ड. वंडरफुल. मतलब इतने वो हीलिंग के लिए रेडी थे दोनों जाने, माइंड के लेवल के ऊपर. मुझे चीज तो उन्होंने मुझे बाद में बताई थी सेशन की, तब नहीं उन्होंने बताया था. तो उन्होंने देखा कि वो एक बहुत पुराने विलेज में है, और जो डॉटर इन लॉ मेरे पास आई थी वो मदर थी, मदर इन लॉ डॉटर थी, और मदर इन लॉ डॉटर थी. मेरा जो रोल था, मेरी मदर इन लॉ उसके रिवर्स. करेक्ट. वेरी नाइस. तो मैं और भी एक्साइटेड होगी. चलो देखते हैं क्या है, मतलब अनफोल्ड और क्या हो रहा है. तो फिर जब मैंने उनसे और सीन उनको मैं बोला कि आप नेक्स्ट सीन में देखिए, तो उन्होंने देखा कि एक्चुअली जो उन्होंने गर्ल चाइल्ड वो पैदा की थी वो 60 की मतलब 50s की एज में थे. मतलब लेट एज में उन्होंने बच्चे हुए उनके. बेटी मतलब वो सिंगल चाइल्ड थी. तो जब वो देखती हैं कि अब जब उनकी डेथ होती है उनकी खुद की, मतलब एज ए लेडी, तो वो देखती हैं जो गर्ल चाइल्ड है अराउंड अबाउट 9-10 years की थी. तो जब उनकी डेथ हो जाती है और उनका जो फादर है इस करंट लाइफ टाइम, उसका भी हस्बैंड है. जैसे मेरे हस्बैंड, मेरे फादर थे, उसके हस्बैंड भी उसमें हस्बैंड ही हैं. तो उन्होंने देखा कि जब डेथ होगी उनकी, तो जो बेटी पीछे छूट गई, से जो अब मदर इन लॉ है, वो उसकी जो टेक केयर उसका फादर भी अच्छे से नहीं करता. तो वो लड़की है छोटी, तो वो हमेशा यही चीज सोचती है कि मेरी मदर ने मुझे इतनी लेट एज में क्यों लिया जब वो मेरी टेक केयर नहीं कर सकती थी. तो उनको वही अपनी मदर के ऊपर जी गिला था कि जब मैंने टेक केयर नहीं करनी थी तो लेट एज में क्यों लिया. आप भी इस एज में है कि वो मदर इन लॉ चाहते तुम घर पे ही रहो,
घर का काम करो, खाना बनाओ, केयर करो उसको, उनको बेड के ऊपर चाय चाहिए, सब कुछ। तो आफ्टर द सेशन, दो उनको पेन बहुत हुआ सेशन में, ड्यूरिंग का राइट पूरा सेशन, मतलब उसकी बॉडी में इतना पेन था, वो मुझे बाद में उन्होंने बताया कि मैं आगे आगे जा ही नहीं पा रही थी कि इतना पेन है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक्सपीरियंस कीजिए इस चीज़ को, ये भी चला जाएगा। तो जब हीलिंग की और उनके हफ्ते 10 दिन के बाद ही उनका मुझे कॉल आया, लोकली है मेरे घर के पास ही है थोड़ी दूर, तो उनका वो पेन भी चला गया, मॉर्निंग एंजाइटी भी चला गया और उनको जॉब भी मिल गई है। क्या बात है, Wow. वंडरफुल, That is what so a beautiful. blessing, what a blessing, Yeah. Yes, ma'am। what a blessing और this मैंने work That ये is. means लर्निंग ये ली, मैंने लर्निंग ये ली कि ठीक है, अगर बीइंग अ चाइल्ड आप गलती करते हो तो बड़ों को भी उस एंगल से बच्चों के लिए सोचना है, छोटों के लिए, और छोटे हैं जो उनको भी बड़ों के लिए ऐसे सोचना है। और मैं एक चीज आपसे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरा पीएचडी का थीसिस है वो भी एल्डरली के ऊपर है। क्या बात है, Oh, लवली। अब wow. मैं मतलब डॉट्स जब कनेक्ट करती हूँ तो फिर मैं देखती हूँ कि मेरी क्यूरियोसिटी क्यों थी बूढ़े लोगों में। मैंने हाँ 200 कपल्स इंटरव्यू किए थे, 200 मेल्स एंड 200 फीमेल्स। तो उनके जो इंटरव्यूज सुन के ऐसे मेरे अपने आप में जो अवेयरनेस आई, तो मुझे था इन सब चीजों से पहले कि मुझे एल्डरली केयर होम खोलना है, वो मेरा बट ड्रीम गोल है। बट इमेजिन अर्जुंदर, जब तुमने एक्चुअली फाइंड आउट किया कि पीछे ऐसा क्या क्यों है। है, तब तुमने यस कनेक्ट किए डॉट्स, पूरा यस वो मैम, तब पिछले मैंने किए, डॉट्स। Yeah. तभी So, किए वाह, मैंने so, क्या so कि बात nice. है। Yes. तो उसके बाद फिर मैम मैंने जैसे एल्डरली मेरे घर के आसपास है, अभी जब लॉकडाउन था तो मैं उनसे बात करती हूँ कैसे हो वो। अभी मेरे घर के पीछे ही एक विडो रह रही है, सिंगल है वो, अभी 75 ईयर्स ओल्ड है, तो उनसे मैं बात करती हूँ, पूछ लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, जब अपना खोलेंगे तो देखेंगे, हमारे पास ही है एल्डरली केयर होम, सेंटर है। जितना मेरे से हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ वहाँ जाऊँ, कंट्रीब्यूट कर सकूँ। तो उससे वाह रियली अर्जुंदर, So रियली nice. मुझे So बहुत nice. ज्यादा इससे पीस मिला है, और फ्लो भी हो रही है, एनर्जी चैनलाइज हो रही है, और लोगों के साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ, और वाकई ही ये वर्क करती है। ट्रेडिशनल साइकोलॉजी से मतलब काफी एडवांस है ये। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज Yeah. यहाँ पे वी आर कंसर्न विद द सोल। यस यहाँ पे हम बॉडी माइंड और फिर स्पिरिट, तो सोल को हम जब इंक्लूड करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो कितने जन्मों से, कितने डिफरेंट यू नो लाइफ टाइम से, डिफरेंट बॉडी से, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट रिश्तों के साथ जुड़ जुड़ के अब हमें ये जीवन मिला है। तो मैं तो ये कहूँगी हरजिंदर, तुमने इस जीवन को साकार कर दिया। थैंक यू मैम। ये हुआ सब Because आपकी वजह से, नहीं, और ये बिकॉज सब हरजिंदर आपकी वजह से हुआ। तुमने सिर्फ अपनी ट्रेनिंग जो थी ना, सिर्फ ट्रेन करके तुम वापस नहीं गई, एंड नॉर डिड यू फॉलो जस्ट द मैनुअल। यस मैम। कई लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग करके, कोई भी ट्रेनिंग Yeah. करते हैं तो आप घर आके फिर वो मैनुअल के हिसाब से काम करते हैं, पर तुमने ऐसा नहीं किया अर्जुन। तुम घर आई, तुमने सोचा, जो जो तुमने एक्सपीरियंसेस किए थे तुमने लिखा, तुमने Yes, फिर ma'am. अपने ऊपर काम किया। ये बहुत जरूरी है, अपने ऊपर काम Yeah. जब तक नहीं करेंगे तब तक आप जो भी सीख के आएगा, यू हैव लर्नड व्हाटएवर, उसका फल नहीं मिल सकता, न तुम्हें न किसी और को। No. पर हरजिंदर, यू हैव, तुमने देखो अपनी लाइफ फैंटास्टिक कर ली, Yes, अपने हस्बैंड की लाइफ फैंटास्टिक कर ली, अपनी मदर इन लॉ की लाइफ फैंटास्टिक कर ली। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? और उसको यही पता भी नहीं, नहीं है, और उसे और पता उसको भी पता नहीं है। सोच, उसे पता भी मैंने नहीं। बताया नहीं है, मैं हस्बैंड को बताया, उनको पता है, लेकिन हाँ। मदर इन लॉ को नहीं पता। तो कितनी बढ़िया बात है, सोचो। और नॉट ओनली दैट, अब जो जो लोग तुम्हारे पास आ रहे मदर इन लॉ प्रॉब्लम्स लेकर, यस मैम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स लेकर, तो इससे मैंने इनको ये भी लर्न किया ना कि मुझे जो थोड़ा ऊपर मैं फील करती हूँ, थोड़ा रिश्तों पे भी ध्यान देना है, ग्राउंडिंग Right. करनी है। वंडरफुल। तो यही होता है, आई एम ओके, यू आर ओके, इर्मिला, है ना? Yes, yes. वी आर ऑल ओके, हम पहले सब सोचती थी आई एम okay. ओके, यू आर नॉट ओके, बट नाउ आई एम ओके, यू आर ओके। वंडरफुल ग्रेट इनसाइट्स, ग्रेट इनसाइट्स हरजिंदर। I like your company का जो नाम दिया हुआ है, काउंसलिंग सेंटर का, हाँ, Healthy Man. Man, It's yes, very man. nice. And Man. when she sent it to me, she wrote
Man in Hindi, healthy हाँ. in English and Man in Hindi. Very nice. So I was बहुत ही wondering बढ़िया. ये है क्या? Then I understood. I mean, so beautiful, yeah, very nice. Absolutely, absolutely, हरजिंदर. मुझे लग रहा है और कुछ पूछना चाहती हूँ निर्मला. No, You want I to just ask wanted something? to know, Harjinder, अगर हाँ जी, I just मुझे थोड़ा सा पूछना था ये आप you go to this नवोदय विद्यालय, वो what do you teach there? एक्चुअली ये नवोदय विद्यालय सेंटर के स्कूल्स हैं जहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं, जो फ्री एजुकेशन है गर्ल्स एंड बॉयज. Okay. 5th क्लास के बाद ये स्टडी होती है, फ्री है सभी के लिए, टेस्ट क्लियर करना होता है. तो वहाँ पे मैं ट्रेनिंग्स देती हूँ टीचर्स को. जैसे उनकी टीचर्स की ट्रेनिंग होती है तो एज ए रिसोर्स पर्सन वो मुझे बुलाते हैं, साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स के ऊपर और मेमोरी के ऊपर जो हैं, जैसे उन्होंने एग्जामिनेशन फियर एंड फोबिया कैसे क्योर करना है, उसकी ट्रेनिंग बच्चों के तो साथ. जब ये HIV and AIDS पेशेंट्स के साथ जब आप काम कर रहे थे, so this was also with counseling related या क्या था ये? काउंसलिंग रिलेटेड ही था. तब तो मैंने PhD करना था, अभी कर रही थी, साथ साथ में जॉब भी कर रही थी. तो तब इतना अवेयरनेस नहीं था इस लेवल के ऊपर. तब जैसे हम ट्रेडिशनल काउंसलिंग करते हैं, सेशंस और एजुकेशन, वो हाँ एक चीज़ मैंने जहाँ से भी सीखी थी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. हो सकता है आपको भी, आपके जो पैटर्न्स है वो भी ठीक हो उससे, या सुनने वालों के भी. जब मैं कर रही थी इन लोगों के ऊपर काम, इसमें सेक्स वर्कर्स भी होती थी. HIV एड्स की जो है ICTC सेंटर, ये नेको का है प्रोजेक्ट. तो कहीं ना कहीं मेरे में वहाँ पे भी था, लेकिन मैं उनके साथ इतनी कंफर्टेबल नहीं थी कि उस बिहेवियर को लेके, उस कर्मा को लेके. तब अवेयरनेस नहीं थी, ये तो अब मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ, तब नहीं पता था. तो तब हमारी ट्रेनिंग हुई इन सर्विस दिल्ली में. तो हमें वहाँ पे जो ट्रेनर इंटरनेशनल आए हुए थे, उन्होंने हमें वो GBT रोड विजिट करवाया दिल्ली में, जहाँ पे जो लाइसेंस्ड फीमेल्स होती हैं सेक्स वर्कर्स. तो मैंने उनको जब करीब से समझा, देखा, तो ट्रेनिंग के दौरान जो हमारे ट्रेनर थे उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि इनका भी हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है. तो मैंने सोचा, मैं और भी क्यूरियस हो गई उस चीज के लिए कि मैं इस चीज को इतना अच्छा नहीं मानती हूँ, बुरा भी नहीं अच्छा भी नहीं, मतलब इतना कंफर्टेबल भी नहीं. तो उन्होंने कहा कि इनका कंट्रीब्यूशन ये है, अगर लाइसेंस्ड फीमेल्स ऐसे जो नहीं है तो लोगों को साइकेट्रिक इश्यूज बहुत हो जाएंगे और रेप बहुत ज्यादा होंगे. इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा वहां पे मतलब मेरे वो कॉग्निशन, वो बाइस्ड टोटली मेरा चला गया. उनके साथ तो गया ही गया, और जैसे क्लाइंट्स डिफरेंट प्रॉब्लम्स लेके आ जाते हैं, उनके साथ भी चला गया कि वाकई उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कि अगर वो नहीं होंगी तो रेप कितने ज्यादा होंगी. बिल्कुल बिल्कुल. तो वहां से वो चीज हट गई. तो फिर मैंने फ्रीली उनको साइको एजुकेट करना, आराम से उनसे बात करना, जो मुझे अजीब सा फील होता था वो सब चला गया. बायस तेरा चला गया ना, उनके साथ तो गया ही और लोगों के साथ भी चला गया. बिल्कुल. और हम लोग तो हमेशा पास्ट लाइफ में कहते हैं कि the 4 P's हमें याद रखने. We have lived lives as princes, we've lived lives as prostitutes, as paupers and as priests. तो ये 4 P's हमें याद रखने होते हैं. कोई ना कोई जीवन में ऐसा जीवन जिया होगा, और इसीलिए तुम उनके साथ काम भी कर रही हो, और अच्छी तरह से काम तुम अब डेफिनेटली करने, डूइंग सम गुड वर्क. अर्जिंदर, वेरी गुड. अर्जिंदर, आगे क्या सोचती हो? अभी जैसे काफी कुछ तुमने केसेस भी किए हैं, यू रियली डूइंग गुड वर्क, यू नो, अमृतसर में. तो आगे कैसे तुम अपनी लाइफ को देखती हो? आगे मैम, जैसे मेरी 2 गर्ल चाइल्ड हैं, उनकी पेरेंटिंग पे भी मुझे इन चीज़ों से फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मेरा अपने इमोशंस ठीक हो गया, मैं उनके ऊपर ध्यान लगा सकती हूँ, उनको देखना है. प्लस अगर मैं अपने रिलेशनशिप को भी मुझे साथ ही लेके चलना है. जैसे हमने पहले फॉरेन कंट्री के लिए बहुत बार अप्लाई किया था, मुझे था कि मुझे यूनिवर्सिटी में जॉब करनी है, वहाँ जहाँ चले जाऊँ, मेरा कहीं नहीं बना. तो उस चीज़ से मुझे ये अंडरस्टैंडिंग, ये अवेयरनेस आई है कि मुझे फैमिली के साथ, मेरे पेरेंट्स इन लॉज के साथ ही रहना है, कहीं नहीं जाना. तो ये चीज़ है कि उनको मुझे साथ देखना है. और जो मैं हीलिंग कर रही हूँ, अभी तो मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, तो फर्दर मेरा ये है फ्यूचर में कि मैं फुल फ्लेज अपना इंस्टीट्यूट खोलूँ
काउंसलिंग साइकोथेरेपी के लिए, प्लस और थेरेपीज जो भी मैं कर सकूं ह्यूमैनिटी के लिए, और एक मुझे एल्डरली केयर होम भी खोलना है, क्योंकि ये तो मेरा Wonderful. पहले का ड्रीम है। अब मुझे अवेयरनेस भी हो गया है कि बिल्कुल मुझे ये काम करना है इस लाइफ टाइम में, मुझे एल्डरली की केयर करनी है, चाहे साइकोलॉजिकल लेवल पे उनकी बात सुन के ही कर सकूं, जैसे भी मैं कर सकती हूँ, वंडरफुल तो वो हरजिंदर, मैंने तथास्तु, ऐसा ही हो तेरी लाइफ में। तुझे जो थैंक यू मैम। जो Very भी nice. तेरी ख्वाहिशें हैं, तेरी सभी ख्वाहिशें पूरी हो हरजिंदर। और मैं चाहती हूँ कि तुम पंजाब में अच्छा अपना नाम कमाओ, जमाओ अपना काम वहाँ पर, बिकॉज हर प्रांत में मेरे हिसाब से मेरा एक तो स्टूडेंट अच्छा होना चाहिए, और पंजाब में तो दो दो है मेरे, यस मैम, ऋतु और रितु, तुम। यस तो मैम। इसीलिए आई एम सो हैप्पी, रियली। रितु, रितु ही मेरे लिए काफी चैनल बनी है इस चीज में, मेरी अपनी बिल्कुल हीलिंग के लिए। बिल्कुल यस मैम। बिल्कुल हरजिंदर, थैंक यू यस सो मच हरजिंदर थैंक एंड यू Thank मैम, उर्मिला। you, थैंक यू, Harjinder. थैंक यू उर्मिला, Thank you, थैंक Ma. यू Thank you मैम, so much. थैंक Bye. यू, बाय बाय। बाय। Bye. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम्। That which we call the outer world is perfect. This which we call the inner world is perfect. Each one filled with divine consciousness. Perfect comes from perfect. Take perfect from perfect, the remainder is perfect. Divine consciousness is non-dual. Anything that emerges from the divine consciousness is whole, is complete, is Purna. May peace and peace and peace be everywhere. Om Shanti, Shanti, Shanti.